Hello everyone, this is the Unknown Astrologer. Welcome to my channel. So today I wanted to do a podcast specially on a very special transition of dashas. And a lot of people I know have recently gone through this transition, and a lot of them are about to go through this in the next 3 or 4 years. And this marks an all-time high in terms of Mahadasha transitions for anybody, because if you were born in the Mahadasha of Mars and in the nakshatra of Mars, and you got the Dasha balance of Mars at birth, and then you have lived 18 years of Rahu, and then you have lived 16 years of Jupiter, so right in the bang of your center of your career, you or your professional life in the mid 30s to late 30s, you start the Shani Mahadasha, the Saturn Mahadasha, which will run for the next 19 years. So that will take you to your late 50s, or if it starts in your early 40s, it will take you till to retirement in a way. And so this is a major dasha change for anybody who was born in the dasha of Mars or Moon or even Rahu. Because if you're born in Rahu, let's say you got 9 years of Rahu and then you got 16 years of Jupiter, so that makes it 9 and 16 makes it 25. So at the age of 25, when you're beginning your career, or you're just beginning your career, you're 5 years experience or 6 years experience, and then Shani starts. So a lot of questions will come into your minds. Another important factor is, because you have lived through the dasha of Rahu and Jupiter, it is a very high likelihood that you are already aware that Saturn is going to start, because most of the people who start to read about astrology, most of them will read it, somehow in Rahu dashas or Jupiter dashas. This is the most active dasha sequence which can expose you to astrology, and I'm sure that a lot of people who are following me on this channel would have gone through this transition. So couple of things here. First of all, no matter what your ascendant is, this video is not an ascendant specific video or a moon sign specific video. This video is on the general impacts of of Guru and Shani, and what the Mahadasha shows. So what does the Mahadasha do? First things first, Mahadasha sets the environment of your life. The kind of people you meet, the kind of daily activities you do, the kind of things which come into your life out of nowhere, the responsibilities or the knowledge or awareness of anything, is all a Mahadasha dependent theme. So, but वो महादशा लॉर्ड कहाँ का लॉर्ड है of as per your D1 chart will show the auspiciousness or the inauspiciousness of that dasha. So Jupiter dasha can be very good for a Saggy ascendant person. It will not be as good for somebody who has a Libra ascendant. But both of them will go through a lot of similar results, or a lot of similar impacts will be seen in the environment they are living in and in the kind of activities their mind is exposed to. Now, since we are talking about the transition from Jupiter to Shani, the most important planet becomes Rahu, because the last antar of Jupiter Mahadasha is of Rahu. So you go through a Guru Rahu Mahadasha Antardasha, and then you enter Saturn Mahadasha. Okay, so let's just understand Jupiter Mahadasha results first. Jupiter is the planet of expansion. Okay, it is the planet of knowledge. It is the planet of first principles. It is the planet of concepts. It is the planet of ethics. It is the planet of wisdom. It is the planet of advice. Okay, it is the planet of fortune. तो इसमें होता क्या है? Everybody, regardless of the sign, who has lived a 16-year-long Jupiter Mahadasha has a strong knowledge base, regardless of the Lagna, that is.
will definitely have a strong knowledge base about their own profession, about the way this world works. कुछ एक अंडरस्टैंडिंग होगी इस दुनिया के सिस्टम की, उनके अंदर विजडम होगी डेफिनेटली. वो लोग 100% अपने से छोटों को, इनफैक्ट अपने से बड़ों को भी किसी ना किसी बात पे एडवाइस दे रहे होंगे, और उनकी एडवाइस 90% ऑफ द केसेस में सही भी हो रही होगी. गलत एडवाइस नहीं देंगे. वो समझ जाएंगे कि दुनिया कैसे चलती है. और फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे बहुत फोकस है, मतलब कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी पे फोकस है. अगर चंद्रमा अच्छा है तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी, चंद्रमा अच्छा नहीं है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, बट उनका फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल पे होगा कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पहले वो अच्छे से सीखो. वो हमेशा ये बोलते हुए देखेंगे कि यार पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके ऊपर हमको बिज़नेस बनाना है, या फिर हमको उसके ऊपर काम करना है. पहले हमें आना चाहिए. वो लोग सारे जुपिटर महादशा के लोग, स्पेशली जिनकी महादशा थोड़े यंग एजेस में आई है, टीन्स में, 20s में, इवन 30s में, उन सब का इंटरेस्ट ये होगा कि मुझे नॉलेज गेन करनी है. वो लोग आपको इस 16 साल में एटलीस्ट 1 या 2 चीज़ पढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे कि कुछ ना कुछ पढ़ाई करी, भले ही उनका जुपिटर बहुत अच्छा लॉर्ड ना हो फ्रॉम द असेंडेंट. इवन देन आई हैव सीन पीपल इन तुला लग्न, लिब्रा असेंडेंट, वेयर जुपिटर बिकम्स द 3rd and the 6th लॉर्ड. वो इंसान ने भी IIM कैलकाटा से एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया जुपिटर दशा में. उसके पहले एक और अपना नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है वो भी किया. कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, कोई वास्तु पढ़ रहा है, कोई कुछ और नॉलेज गेन कर रहा है, फाइनेंस की नॉलेज गेन कर रहा है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन कर रहा है. ये सब लोग जुपिटर दशा वाले आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि पहले नॉलेज लेंगे, फिर उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके पैसा कमाएंगे. और इनवेरिएबली 90% ऑफ द पीपल इन जुपिटर महादशा विल एंड अप सेइंग कि पूरी महादशा में मैं नॉलेज ही लेता रह गया, मेरे काम नहीं बने उतने जितने मुझे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. ऑल्दो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइफ में ग्रोथ हुई होगी, पैसा आया होगा, फैमिली लाइफ के लिए हमेशा जुपिटर अच्छा है तो फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा हुआ होगा. अनलेस दे आर वेरी ओल्ड एंड दे आर सिक एंड ऑल, वो छोड़ दो. यंग लोग जो जिनकी हेल्थ ठीक है, उनके फैमिली लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुए होंगे, स्टेटस ऑफ लिविंग में थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन हुआ होगा, पैसा आया होगा. बट फिर भी वो लोग आपसे ये कहेंगे मिड वे थ्रू द दशा और टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ इट, कि यार काम तो हमने किया, कोशिश करी, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, बट हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद क्लाइंट्स, and I have dealt with over 1,000 clients so far, at least 1,000 in Jupiter Mahadasha. I have seen people with Jupiter Mahadasha in Cancer Lagna, Leo Ascendant, Aries Ascendant, जहाँ जुपिटर अच्छा है, बट वो लोग भी यही शिकायत कर रहे हैं कि यार मुझे नॉलेज बहुत मिल गई, मुझे आता सब कुछ है, बट मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे इन टर्म्स ऑफ मनी. और पैसा भी है, किसी के पास इनहेरिटेंस का पैसा है, किसी के पास किसी ऐसे सोर्स से पैसा है जिस सोर्स से वो पैसा नहीं कमाना चाहता, और जिस सोर्स से वो कमाना चाहता है उससे पैसा नहीं. वहाँ पे नॉलेज बहुत है, नॉलेज हर चीज़ की बहुत है, विजडम बहुत है, सब कुछ आता है, लेकिन रिजल्ट नहीं है. तो दिस इज़ व्हाट जुपिटर डज. इट अल्टीमेटली इनरिचेस योर माइंड थ्रू विजडम, थ्रू नॉलेज, थ्रू एडवाइस, थ्रू एक्सपीरियंस ऑल्सो. एक्सपीरियंस बहुत है इनको, इनके पास काम ना बनने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनका तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका काम राहु की दशा से ही नहीं बना और जुपिटर में भी नहीं बना. थोड़ा बना, राहु से बेटर हुआ, लेकिन बहुत उनके इच्छा अनुसार नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उनको इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली थिंग्स. बट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल थिंग्स दे हैव गेन्ड अ लॉट विच दे विल नॉट नो. at a lot of times, no matter how wise they are, पर उनको पता ही नहीं उनको क्या मिला है. ये जुपिटर में होता है, ज्ञान बहुत है, लेकिन समझ नहीं आया कि ये मेरे पास जो ज्ञान है ये कितना वैल्यूबल है, क्योंकि जो चीज़ उनको नहीं मिली वो ये चीज़ है कि उनको काम करके उस ज्ञान को रिजल्ट्स में लाने की जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उनको नहीं मिल पाती इस दशा में. Jupiter does not give you that. It just keeps on giving you knowledge, 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 theory, theory, theory,
less practical. Okay, then comes, so this will happen for the first 15 and a half years of Jupiter, 13 to 12 years Jupiter दशा. कुछ अंतरदशा कुछ लोगों की अच्छी जाएंगी बीच बीच में, मोर और लेस ये थीम रहेगा. एंड देन कम्स द छिद्र दशा ऑफ जुपिटर राहु. छिद्र दशा इज अ टर्म विच इज़ यूज टू टेल दैट ये लास्ट दशा है, दशा छिद्र है, इसके बाद नई महादशा स्टार्ट होगी. देन कम्स राहु. अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, कोई भी महादशा हो जो उसमें लास्ट अंतर होता है, दैट अंतर विच इज़ अ छिद्र दशा, छिद्र अंतरदशा, इज़ फॉर वाइंडिंग डाउन, फॉर सेटलिंग ऑफ अकाउंट्स. कि ठीक है भाई, ये मिला ये नहीं मिला. प्लैनेट्स ऐसे एक्ट करते हैं कि अब जो नहीं मिला उसको जाने दो, जो मिला उसको रख, वैल्यू कर लो. दिस इज़ वॉट विल हैपन इन ऑल लास्ट अंतर्स. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू एनी अदर अंतरदशा, लास्ट अंतरदशा इन योर अडल्ट लाइफ, बचपन की बात मत करना, इन योर अडल्ट लाइफ, और बहुत बुढ़ापे की बात भी नहीं करनी, बट इन योर अडल्ट लाइफ अगर आपका मार्स की दशा ख़त्म हुई है, राहु की ख़त्म हुई है, somebody has ended a Venus महादशा और a Sun महादशा, all of you will agree कि जो भी उस दशा का मेन कारकत्व था उसके लास्ट अंतर में हमें कुछ नहीं मिला. हमने खाली ये रियलाइज़ किया कि हमें इसमें क्या मिला है और क्या नहीं मिला है. बस ये रियलाइजेशन होता है और कुछ नहीं होता. सिर्फ कट ऑफ होती हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं थी वो कट जाती हैं, लास्ट छिद्र हो जाता है, कट जाता है वहाँ से. जैसे किसी की वीनस की महादशा में मान लो रिलेशनशिप हुई बट वो अच्छी नहीं थी, तो वीनस केतु में कट जाएगा, हटा देगा वो उसको. ऐसे ही मार्स दशा में अगर कोई इंसान बहुत एक्टिव एनर्जी से तीन काम कर रहा है, उसमें से 2 काम अच्छे चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा, वो काट देगा उस काम को, क्या मुझे नहीं करना, राहु में मैं उसको लेके नहीं जाऊंगा. सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वैसे ही प्रोग्राम हो जाता है इंसान. बट जैसे मैंने बोला, हर महादशा में के एंड में ये रियलाइज़ होता है कि क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या पाया क्या खोया. एक महादशा है जिसके एंड तक भी ये रियलाइज़ नहीं होता है, क्योंकि जो लास्ट अंतर है वो राहु का है. इसमें वो होता है जो इसके पहले 12-13 साल में नहीं हुआ. जुपिटर कहता है एक्सपैंड करो, करेक्ट. जुपिटर का बेसिक स्टेटमेंट क्या है? एक्सपैंड करो, बढ़ाओ. राहु कहता है एम्प्लीफाई करो. जब जुपिटर पावर में है और राहु उसके अंडर में है, तो जुपिटर उसको फुल परमिशन देता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो. तो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी अमेज्ड टू नो that the maximum worldly achievements happen in the Rahu Antardasha of the Jupiter Mahadasha. इस वर्ल्डली अचीवमेंट का मतलब है शादी, बच्चे, प्रमोशन, जॉब, बिजनेस, फेम, नेम, मनी. जो भी मैक्सिमाइज कर सकता है राहु, वो मैक्सिमाइज करता है. जुपिटर ने जिस चीज़ की परमिशन दी है D1 से, देखो महादशा परमिशंस देता है, अंतरदशा उस काम को करती है जो उसके कार्यकत्व से सूट करती है. बट बाकी सारे प्लैनेट्स कुछ ही कुछ काम करेंगे. जैसे वीनस का अंतर आएगा तो वो शायद रिलेशनशिप पे ही काम करे, या जहाँ का लॉर्ड है वहाँ का काम करे. राहु को सब कुछ चाहिए, राहु को ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं चाहिए. तो राहु की अंतर में राहु विल ग्रैब, ओवर एक्सटेंड, ओवर रीच एंड स्नैच अवे प्रिविलेज. जो भी खींच सकता है खींचेगा. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एक मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ. मैं एक पॉडकास्ट आता है यूट्यूब पर, है द रणवीर शो, शायद आप लोगों ने देखा हो. और रणवीर शो के चैनल पर एक कोई एस्ट्रोलॉजर साहब आए. ओके, मैं उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बट उन एस्ट्रोलॉजर को रणवीर ने अपनी कुंडली दिखा दी. और रणवीर ने पूछा कि सर मेरी अभी 1 साल बाद या पता नहीं 2-3 महीने बाद महादशा सैटर्न की स्टार्ट हो रही है, तो इसमें क्या होगा. एस्ट्रोलॉजर ने जो भी बोला नहीं बोला, रिगार्डलेस ऑफ दैट, बट दैट मेड मी अंडरस्टैंड कि करेंटली रणवीर इज़ इन जुपिटर राहु. और आखिरी के जो पिछले 1.5-2 साल गए हैं
उसमें दैट चैनल हैज़ बिकम द नंबर 1 चैनल इन इंडिया। उसमें संजीव गोयनका का इंटरव्यू आता है, वरुण धवन का आता है। इट वॉज अ वेरी स्मॉल चैनल फ्यू ईयर्स बैक, बट जुपिटर राहु में वो सब अचीव हुआ जो उसको करना था, और वो बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी, और उस इंसान की इच्छाएं भी, रणवीर की इच्छाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अब वो फॉरेन भी जाना चाहता है, शायद उसने खुद ही बोला है। तो इस तरह से जुपिटर राहु ने सब कुछ दे दिया। और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं उनके जो एक वैल्यूएशन करते हैं, एक पर्टिकुलर फाइनेंस की जॉब में हैं, जिनके लाइफ में 3-3, 4-4 साल से कम में प्रमोशन नहीं होता। उनका जुपिटर राहु में 2 प्रमोशन हुए, शादी भी हुई, जो कि शादी बहुत समय से नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, बट इसमें शादी भी हुई तो प्रमोशन भी हुए। किसी का, एक और साहब है जिनका एक बेटा था, दूसरा बेटा पैदा हुआ पहले बेटे के 7 साल बाद, वो जुपिटर राहु में हुआ, आफ्टर लॉट ऑफ टाइम विद दिस प्लैनेट। ऐसे बहुत से और भी तमाम एग्जाम्पल्स हैं। मेरी भी लाइफ में इस ट्रांजिशन में जुपिटर राहु वॉज द बेस्ट दशा, और इसीलिए ये रियलाइज़ नहीं होता है कि आपने क्या पाया क्या खोया, जो हर छिद्र दशा में रियलाइज़ होता है। बट इसमें यू डोंट रियलाइज़ व्हाट यू हैव गेन्ड और व्हाट यू हैव नॉट गेन्ड, बिकॉज यू आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग। सो यू कांट सिट बैक एंड रियलाइज। ओके, इसके बाद आती है सैटर्न महादशा। नाउ दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। I have met, I don't know how many, but a lot of Indian astrologers, both commercial people and village astrologers and all kinds of people. I have read literature of all kind, but my research and my understanding and the person who I take my guru, even that person's understanding is slightly different. A lot of people will say that Saturn is the karaka of spirituality. It is the planet of darkness. It is the planet of delays. In our analysis, in our judgment, in my judgment, that is, since this is my channel, so I should speak about my judgment. In my judgment, Saturn is the most material planet in the solar system. Full stop. So, when this transition happens in the first 2 years of Saturn Mahadasha, the person will change internally. In any Mahadasha, whenever a new dasha starts, the first antar is of the same planet. In that antar, usually you will see marked changes in the environment. A lot of times the changes start from inside, and then an event happens and the life also changes. Otherwise, it could just be an internal change which will result in a larger material event when the second antardasha comes, which is after the same planet's antardasha. So the change which happens here is that the Jupiter concepts, those first principles, those philosophies of life, that urge to gain as much knowledge and as much wisdom and advise people, just fades away in the background, and a more Saturnine quality starts to creep into your head. And that quality is, show me the numbers, show me the time, show me how much have you made. If this is what you know, so you should make 10 rupees. Have you made that or not? If you have not made 10 rupees, then this knowledge is an absolute waste. Saturn becomes a hardcore material go-getter, and in the entire Saturn Mahadasha, you will always have a feeling of scarcity and delays. I have consulted so many people who are in Saturn Dasha. They say काम नहीं बन रहा है, काम देर से बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती तब काम बनता है। ये वही लोग हैं जो जुपिटर महादशा में कुछ साल पहले तक काम बनने के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे थे। उनके पास एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ अबंडेंस थी कि हाँ, हमारे पास तो बहुत कुछ है। जुपिटर ये फीलिंग देता है, बहुत कुछ है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, फैमिली लाइफ अच्छी है, पैसा आ रहा है, विजडम है ना बहुत ज़्यादा, गुरु बने फिर रहे हैं, उनको लगता है मैं सब सही है। और वही लोग 5 साल, 7 साल, 6 साल, कुछ केस में 2 साल बाद राहु ने जो चस्का लगाया जुपिटर राहु में रिजल्ट्स को पाने का, बहुत तेज़ रिजल्ट्स आए,
2 ही साल में सब कुछ दे दिया राहु ने। अब सैटर्न ने वहाँ पे थोड़ा सा, अब जो सैटर्न दे रहा है उसमें डिले फील हो रहा है, और जो कांस्टेंट मटेरियल अर्ज है वो बढ़ती जा रही है। तो जब मटेरियल अर्ज बढ़ रही है तो स्कैरसिटी की फीलिंग बनी हुई है। स्कैरसिटी इज़ जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड, you can't really quantify it. In Jupiter you had 2 rupees and you thought it's enough. In Saturn you have 7 rupees and you're still saying कि यार और होना चाहिए, क्योंकि वो फीलिंग है। सैटर्न में स्कैरसिटी की फीलिंग है, जुपिटर में अबंडेंस की फीलिंग है। जुपिटर में नॉलेज सीकिंग एटीट्यूड है, सैटर्न में कहता है नॉलेज तो गई तेल लगाने, रिजल्ट दिखाओ, एक क्वांटिफाइबल एम्पेरिकल वैल्यू दिखाओ। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना है वो दिखाओ, तब मैं मानूंगा। सो सैटर्न मेक्स यू हाईली मटीरियलिस्टिक एंड देयर इज़ अ कांस्टेंट मटीरियल परस्यूट विच गोज ऑन फॉर द नेक्स्ट 19 years, which gives you a lot of responsibilities. You can't become successful unless you have responsibilities, right? You will have to shoulder responsibilities, and the result of shouldering that is that you get money in exchange of that. तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद के ऊपर लेते हो, आप ओवर वर्क करते हो अपने आप को, बहुत मेहनत कराता है। यू ऑल्सो रियलाइज़ कि आई विल हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इफ़ आई वॉन्ट दिस। सो डिसिप्लिन आ जाता है। जुपिटर में डिसिप्लिन कम है, जुपिटर में बैठ कर के सोचना ज़्यादा है, थॉट ज़्यादा है, थॉट एक्शन ज़्यादा है, फिजिकल एक्शन लिमिटेड है, थोड़ा सा कम है। सैटर्न में थॉट एक्शन बैक बर्नर पर, फिजिकल एक्शन, गोइंग आउट एंड गेटिंग द वर्क डन, डूइंग समथिंग, वर्किंग फॉर इट, वो ज़्यादा है। ओके एक चीज़ और है सैटर्न में, जुपिटर ने दुनिया भर का ज्ञान दिया था, एक ज्ञान जुपिटर नहीं दे पाता है, वो ज्ञान है समय का, टाइम का। द नॉलेज एंड रियलाइजेशन ऑफ टाइम actually happens when you are in Saturn Dasha. Now this time has many definitions. Time of the day, I have 12 hours, मुझे उसमें ये भी करना है, फिज़िकल फिटनेस भी रखना है, घर को भी देखना है, ऑफिस भी करना है, हॉबी भी करना है, ये भी सोशल सर्विस भी करनी है, सोशल गैदरिंग्स में भी जाना है। तो आई हैव 12 hours, अब सब कुछ करना है। आई हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन टू फिट एवरीथिंग इन। दैट इज़ वन definition of time. The other definition is the time in which you are currently living, this current age, काल, उसकी नॉलेज। और तीसरी चीज़ है योर ओन पर्सनल एज, कि मैं इतने साल का हो चुका हूँ, अब अगर मुझे घर ख़रीदना है तो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे जल्दी जल्दी करना है, या मैंने बहुत टाइम तक बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे वो सब नहीं करना, मुझे कुछ नया करना। सो ये तीनों डेफिनेशंस टाइम की, विच इज़ द टाइम ऑफ द डे, टाइम एज इन काल, एंड योर ओन एज एज अ फैक्टर ऑफ टाइम, ये तीनों नॉलेज सैटर्न देता है। यही नॉलेज थी जुपिटर ने जो नहीं दी थी, यही बच गई थी, बस वो यहाँ मिलेगी। और ये मोस्टली इन द फर्स्ट अंतर ऑफ सैटर्न मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरा सैटर्न में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये टाइम की नॉलेज उनको दिमाग में घुसेड़ने में सैटर्न को बहुत टाइम लगा। जल्दी से समझ जाते तो एक्टिविटी करते उस हिसाब से और वो हो जाता। जो नहीं समझा उसको समय लग गया, उसको मटेरियल रिजल्ट्स नहीं मिले। और राहु ने बहुत हाइटेंड मटेरियल एक्टिविटी दिखाई थी, जुपिटर राहु ने, उसके बाद एक लल आ गया, एक शांति आ गई, एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया। एक और सेइंग है कि जुपिटर गोज फार, राहु गोज हाई, टुगेदर जुपिटर एंड राहु गोज फार एंड वाइड, फार एंड हाई। तो जुपिटर राहु साथ में बहुत चीज़ें समेट लेते हैं, बट सैटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, बहुत पॉइंटेड एजेंडा कर देता है। सो दिस इज़ हाउ द सैटर्न दशा विल पैन आउट फॉर यू। If what I have said about Jupiter Dasha is correct and you think that I am speaking out of some practical experience, you can comment on this video so that I also get to know that my research is actually applicable at a large human base. तो आप comment ज़रूर करो, बताओ मुझे। और सैटर्न की पूरी दशा में मटेरियल परस्यूट रहेगा, स्कैरसिटी की फीलिंग रहेगी। जुपिटर की पूरी दशा में परस्यूट कुछ भी रहे, लेकिन फीलिंग अबंडेंस की रहती है, और मिलती सिर्फ नॉलेज ही है एट अ लार्ज स्केल। बाकी हर चीज़ उस प्रोपोर्शन में छोटी छोटी मिलती है आपको। जुपिटर इज़ ऑलवेज गुड फॉर फैमिली लाइफ, नो मैटर व्हाट द लग्न इज़, अनलेस बहुत मेल्फिक इन्फ्लुएंस है, बहुत ही बुरी कंडीशन में, तो बात अलग है, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज गुड फैमिली लाइफ। एंड सैटर्न इज़ ऑलवेज गुड फॉर प्रोफेशनल लाइफ।
no matter what the lagna is, even in Leo ascendant, in Kark ascendant, Saturn will not be good for health, मारक है, बट करियर के लिए बुरा नहीं है. ओवर वर्क करा के हेल्थ ख़राब कर सकता है, बट करियर में, जॉब में, बिजनेस में, सोशल विजिबिलिटी में इंक्रीमेंट देता है. Whenever Saturn becomes or activates the 10th from Moon, it is a most definite indicator of fame coming into your life. क्योंकि Saturn anyways दिखा रहा है कि मटेरियल और विजिबिलिटी चाहिए उसको. मटेरियल परस्यूट्स पूरे विजिबिलिटी के बाद ही होते हैं. तो जब भी मून से 10th एक्टिवेट करेगा तो 100% गारंटीड फेम है. कितनी बड़ी फेम है, छोटी फेम है, डिपेंड करेगा अदर सिग्निफिकेटर्स पे, बट अगर मून से 10th एक्टिवेट कर रहा है तो फेम डेफिनेट है. उस एक्टिवेट कैसे होगा? अगर मून से 10th लॉर्ड है, मून से 10th में बैठा है, मून से 10th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो फेम है. सोशल एलिवेशन देता है. फेम भी नहीं कहना चाहिए, सोशल एलिवेशन देता है. तो आपको अपने करियर में ग्रोथ देगा, जिसकी वजह से आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और अपने सर्किल में यू विल बी relatively more known than what you were before. So this is my analysis of this major transition from Jupiter to Saturn. If this is happening in your life or has happened in your life, please comment here and let me know. Another thing is, which is on the negative side, मैंने कम बोला कि as I said, Jupiter जो भी permissions दे रहा है, राहु वो सारे काम कर देगा. सो एक ही नेगेटिविटी है, अगर जुपिटर कुछ नेगेटिव परमिशन दे रहा है, अगर वो 6th लॉर्ड हो रहा है या मारक लॉर्ड हो रहा है, और राहु का जो लॉर्ड है, जैसे राहु जिस साइन में बैठा है वो भी नेगेटिव है, तो जुपिटर में राहु सबसे बुरा जा सकता है. बट फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ योर लाइफ, मान लो हेल्थ के लिए है या किसी और चीज़ के लिए, बट फिर भी वो मटेरियल गोल्स को अचीव कराएगा जुपिटर राहु. मोर ऑफन देन नॉट वो मटेरियल गोल्स को अचीव करा के देगा आपको. जो मैंने एक चार्ट कभी रेफरेंस लिया, विच इज़ ऑफ लीब्रा असेंडेंट, इन विच जुपिटर ओन्स 3 and 6, विच इज़ जुपिटर इज एन अकारक देयर, राइट. इट सिट्स इन द सेकेंड हाउस. बिकॉज इट्स इन द सेकेंड हाउस, इट शोज पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग मनी. सो व्हेन जुपिटर राहु स्टार्टेड, ही गॉट 2 promotions, विच इज़ नॉट अ नॉर्म. उसके ना पहले ना उसके बाद कभी भी 2 साल में 2 promotion उस इंसान को नहीं मिले हैं. एंड ही इज़ अराउंड 45-50 years old. सो he has lived his life. ऐसा नहीं कि अभी भी करियर स्टार्ट किया. एंड राहु वहाँ पे 8th में बैठा था, सो विच वॉज द साइन ऑफ वीनस. दैट्स वाई वीनस ने उसका नेचुरल रिजल्ट दिया और शादी भी हुई उसमें, जुपिटर राहु में. सो मोस्टली इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मटीरियल रिजल्ट्स. इफ राहु एंड जुपिटर आर बोथ नेगेटिव हेल्थ वाइज, then it can only give a major negative result. Otherwise it's always good, and it is a time of heightened activity, and then Saturn slows it down. So the feeling in Saturn is that of slowness, because राहु ने बहुत एक्टिविटी दिखाया था. If you compare the Saturn दशा to the entire Jupiter दशा, स्लोनेस नहीं है. जुपिटर कोई बहुत फास्ट नहीं दिया उसने रिजल्ट आपको, बस एंड में रिजल्ट बहुत फास्ट हो गया. So yeah, this is my analysis. Please do let me know how do you find it, and I would be waiting for your comments and WhatsApp messages on this. Thank you.